हेलो प्यारे बच्चों, सब बढ़िया। तो आज बोर्ड पे आप देख रहे हो जेई मेन 2023 जैन सेशन टॉपिक प्रोग्रेशन। तो ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक प्रोग्रेशन आई हैव टेकन इन टुडेज लेक्चर एंड देयर आर टोटल 16 प्रॉब्लम 16 प्रॉब्लम्स जेई मेन की सारी शिफ्ट को मिलाकर पूछी गई है। तो आई विल सॉल्व one by one each and every problem. Remember one thing, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देना, दिस इज नॉट द एम ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। द मेन पर्पस बिहाइंड दिस लेक्चर कि जो प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको देखकर कैसे सॉल्यूशन क्लिक होना चाहिए, व्हाट शुड यू डू, हाउ शुड यू अटेम्प्ट, दैट विल बी माई अटेम्प्ट टू टेल यू, इज इट। सो मैं प्रॉब्लम्स करने जा रहा हूं जैसा मैंने अपने पिछले लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था। सिमिलरली हियर आई विल एडवाइस यू कि प्रॉब्लम को देखो, वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, जब आपसे नहीं बने देन गो थ्रू सॉल्यूशन आई हैव डन, इज इट। चलो, सो फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स पी क्यू आर x raised to the power pq square, y raised to the power qr, z raised to the power p square r is equal to pq plus 1 such that these 4 numbers are in AP. Fine. Common difference 1 by 2. Then we are looking for r minus p minus q. तो अगर बोर्ड पे जो प्रॉब्लम लिखी हुई है, प्रॉब्लम का जो स्टेटमेंट है, दैट इज नॉट अ बिग डील। ये सारा स्टेटमेंट आपका देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, but the issue is what, how to proceed this problem. वीडियो पॉज करो, प्रॉब्लम को पहले खुद से ट्राई करो, देन गो थ्रू सॉल्यूशन आई एम डूइंग, इज इट। चलो, सो वी हैव x रेज टू द पावर pq स्क्वायर इज इक्वल टू y रेज टू द पावर qr इज इक्वल टू z रेज टू द पावर pr स्क्वायर। आई एम assuming it k. I am assuming it k. So here in this problem मेरा जो मेन कंसंट्रेशन होगा that will be regarding these number कि log के टर्म्स मुझे गिवन है log x बेस y, log y बेस z, log z बेस x. So I will go for finding these terms. Once I have these terms, then I will apply formula being in AP. So what I have done, I have taken equal to k. So now x raised to the power pq square equal to k. I am taking log on both sides. So I have pq square is equal to log of k to the base x. Now मेरा ये स्टेप उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डाल सकता है जिन्हें लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं क्लियर है। तो दे मस्ट सी हियर log a to the base a is 1. Log of a number to the same base is always 1. So that I have done here. I have taken both the side log to the base x. So pq square बाहर आ गया और log x base x 1 चला गया और राइट में क्या आ गया, log of k to the base x. Then y raised to the power qr is equal to k. Once again I am taking both the side log, but this time I am taking log to the base y. So this is the value of QR और log का बेस मैंने लिया है, log का बेस मैंने y लिया है। Then we have z raised to the power p square r equal to k. Once again log on both the side, but this time log to the base z. Fine. So these 3 things I have, but we have to reach here log x to the base y, log y to the base z. So now I will take help of one more property of log. Log a to the base b is written log a upon log b. It means if I want to get log x to the base y, I must have log x upon log y. So what I am doing, I am exploring it and log k to the base x
log k upon log x. I am calling equation number 1. QR is equal to log of k divided by log of y, equation 2. P square R is equal to log of k upon log of z, equation number 3. And we can say log to the base e. Log to the base e. Fine. Now student, still we have to reach here. My requirement is log x to the base y. So to complete the requirement, now what I am going to do? I am taking second, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे log x to the base y चाहिए, यानी log x upon log y. तो log x ऊपर होना चाहिए, log y नीचे होना चाहिए. तो what I am doing? Second divided by first. Let's see what will happen. Second equation divided by first. It will make log x to the base y is equal to, I have done second divided by first. Second divided by first. So R upon PQ. Similarly, third divided by second. थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड. जब आप थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड करोगे, थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड करोगे तो log y ऊपर आ जाएगा. तो इट विल गिव log y टू द बेस z इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाई सेकेंड. आर आर कैंसिल होगा. सो p स्क्वायर अपॉन q. फाइन. सो आई हैव गॉट log x to the base y. I have got log y to the base z. Now I need log z to the base x. log z ऊपर होना चाहिए, log x नीचे होना चाहिए. तो log z ऊपर और log x नीचे. So first divided by third. First equation divided by third. तो log z ऊपर आ गया. तो log z to the base x equal to first divided by third. So what will come? Q square upon PR. Are you getting it? Yes. So my dear students, now you can do the problem. अब मैं इसके आगे नहीं जा रहा क्योंकि अब जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो. अब प्रॉब्लम क्या बची? These four terms are in AP with common difference 1/2. Now चीजें अगर AP में होती हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल टू कॉमन डिफरेंस. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू? दो का डिफरेंस इक्वल टू 1/2. और ये जो लॉग वाली टर्म्स हैं वो आपने निकाल ली कि log x टू द बेस y r अपॉन पी क्यू, log y टू द बेस z p स्क्वायर अपॉन क्यू, log z टू द बेस x q स्क्वायर अपॉन पी आर. तो नाउ सिंपली यू हैव 4 टर्म्स इन AP. सो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 1/2 के इक्वल करोगे, PQR में इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करके PQR निकल आएगा, एंड देन व्हाट वी वांट दैट विल इजीली कम. गेटिंग इट? और इसका भी ध्यान रखना, एक रिलेशन हमें ये भी दिया हुआ है. तो आफ्टर इट यू कैन डू द प्रॉब्लम. इसके आगे कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, एंड आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो हियर वी हैव नेक्स्ट प्रॉब्लम. व्हाट इज दिस? फोर्थ टर्म ऑफ GP is 500. कॉमन रेशियो 1/m, m नेचुरल नंबर. Sn सबको पता होता है, सम ऑफ n टर्म्स. देन some relations are given and we are looking for possible values of m. Is it? वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सॉल्व करो, फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना. ठीक है? चलो नेक्स्ट स्लाइड में आई एम डूइंग द सॉल्यूशन. सो नाउ स्टूडेंट, इन दिस प्रॉब्लम व्हाट इज द की पॉइंट? हाउ टू प्रोसीड दिस प्रॉब्लम. एग्जाम में आप बैठे हो तो इसको आप प्रोसीड कैसे करोगे? तो जो फर्स्ट लाइन है, फोर्थ टर्म ऑफ GP विथ कॉमन रेशियो 1/m,
आई होप इससे आप ये रिजल्ट निकालोगे, ए आर क्यूब इज गिवन 500, आर हमारा कितना है 1/m, सो इन दिस वे ए इज कमिंग 500 m क्यूब, इज इट? ये डेटा आ गया. नाउ इन दिस प्रॉब्लम मेजर रोल इस कंडीशन का है. जिसने जिसने इस कंडीशन को इंटरप्रिटेट कर लिया वो ये प्रॉब्लम बना लेगा. S6 ग्रेटर देन S5 प्लस 1. शुड आई पुट द वैल्यू ऑफ S6 S5? बहुत कैलकुलेशन होगा कि जीपी में 6 टर्म का सम 5 टर्म का सम. बेटर टू डू S6 माइनस S5 ग्रेटर देन 1. अब जिसको जिसको ये समझ में आता है S6 माइनस S5 व्हाट इज इट? सम ऑफ 6 टर्म माइनस सम ऑफ 5 टर्म. क्या बचेगा? आर यू गेटिंग इट? फ्रॉम द सम ऑफ 6 टर्म if I subtract sum of 5 terms, what will I get? I will get the 6th term. And in GP, the value of 6th term, a times r raised to the power 5. Okay? R I have 500 m cube. A की value 500 m cube, r 1/m. So now we have 500 greater than m square. Now come to this condition. S7 minus S6 less than half. S7 minus S6, it will make T7. The value of T7, a times r raised to the power 6. How much a? 500 m cube, r 1/m. So now it will make 1000 लेस देन m क्यूब. क्लियर? सो स्टूडेंट जितना भी डेटा गिवन था पूरा हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया. नाउ एट द लास्ट व्हाट वी हैव फ्रॉम हियर m स्क्वायर लेस देन 500 एंड फ्रॉम हियर m क्यूब ग्रेटर देन 1000. m हमारा क्या है? नेचुरल नंबर. तो नाउ सिंपली you have to decide the values of m satisfying these two condition. So m क्यूब 1000 से बड़ा होना चाहिए. 10 का क्यूब क्या होता है? 1000. तो नेचुरल सी बात है m हम 10 से बड़ा लेंगे. We will start from 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 21. यहां तक की वैल्यूज अपने काम की है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, and 21 और एक वैल्यूज और चेक करो 22. आई होप दिस विल ऑल्सो वर्क. 22 का जो स्क्वायर आएगा लेस देन 500 और क्यूब तो 1000 से बड़ा जा ही रहा है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So these total 12 वैल्यूज ये हमारे पूरे काम की है. दैट्स द आंसर. पीछे देख लेते हैं प्रॉब्लम का आंसर क्या है. यस, प्रॉब्लम हैज आंसर 12. इज इट? चलें आगे बढ़े. नेक्स्ट आइए चलो. दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड आई होप एवरीवन कैन डू दिस प्रॉब्लम. दिस इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है. न्यूमरेटर में एक सीरीज आ रही है, डिनोमिनेटर में एक सीरीज आ रही है. तो राइटिंग समेशन ऑफ न्यूमरेटर समेशन ऑफ डिनोमिनेटर वी कैन कंप्लीट द प्रॉब्लम. बनाओ. चलिए मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं. सो व्हाट वी हैव, न्यूमरेटर हैज समेशन n क्यूब. डिनोमिनेटर की बात करूं तो समेशन ऑफ जनरल टर्म. तो जनरल टर्म क्या चल रहा है? n टाइम्स 2n n times 2n plus 1. Fine. This is given 9/5. n 1 to n n 1 to n. Is it? चेक कर लो. n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 into 3. n की वैल्यू 2 रखोगे 2 into 5. n की वैल्यू 3 रखोगे 3 into 7. So now summation n cube
डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर, एंड इन द डिनोमिनेटर 2 टाइम्स समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n. फाइन. सो n इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला 1/6 n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 एंड समेशन n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल टू 9/5. अब ये प्रॉब्लम मैं यहां पे आपके लिए छोड़ दे रहा हूं. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जो टर्म्स कैंसिल हो रही हो उनको कैंसिल करिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, एंड फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n. ओके, बन जाएगा. इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. नेक्स्ट, चलो. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज देयर? 2 पॉजिटिव नंबर a and b such that a, b 1/18 they are in GP. 1 upon a 10 and 1 upon b they are in AP. 16a plus 12b will be how much? कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, सब लोग इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं. करिए ट्राई. सो व्हाट वी हैव? a b 1 upon 18 in GP. So middle term square product of other two. 1 upon a 10, 1 upon b it is given in AP. So double of middle sum of other two. Fine. Nothing special here. Nothing special in this problem. आगे आप ही को करना है. इन दोनों को सॉल्व करके a निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए. वंस यू हैव a एंड b, और याद रखना a और b कैसे हैं? दे आर पॉजिटिव नंबर. a एंड b आर पॉजिटिव नंबर. सॉल्विंग दीज टू, a आ जाएगा, b आ जाएगा. इजिली यू कैन गेट 16a प्लस 12b. बहुत इजी प्रॉब्लम पूछा गया था. ओके, छोड़ दू, कर लेना आप इसके आगे. आंसर इज गिवन हियर. ओके, इस प्रॉब्लम का आंसर मिसिंग है. फाइन, आप इसको कर सकते हो. चलो देन नेक्स्ट. ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग है कि इस तरह के प्रॉब्लम में मैटर करता है कि व्हाट इज योर थिंकिंग. कि आप प्रॉब्लम को बहुत लंबे मेथड से जा रहे हो या कुछ शॉर्टकट वे में कर रहे हो. वी हैव अ जीपी ऑफ increasing positive number. We have a GP of increasing positive number. Product of 4th and 6th term. देखो ये लाइन मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि जीपी है और जीपी में प्रोडक्ट की कंडीशन गिवन है. फिर सम ऑफ 5th एंड 7th टर्म 24. एट आखिरी में क्या पूछ रहा? A1 A9 A2 A4 A9 प्लस A5 प्लस A7. इज इट? तो ओवरऑल जीपी की बात हो रही है, और जीपी के कितने टर्म्स की बात हो रही है? क्योंकि A9 तक आया है, तो A1 से लेके A9 तक जीपी की बात हो रही है. प्रोडक्ट की कंडीशन गिवन है, तो इस प्रॉब्लम को देखकर क्लिक होना चाहिए कि वी शुड कंसीडर द टर्म ऑफ जीपी इन स्पेशल मैनर. व्हाट इज दैट स्पेशल मैनर? खुद से करो पहले प्रॉब्लम को. चलो, मैं प्रॉब्लम को जो कर रहा हूं कि आई एम कंसीडरिंग द जीपी a अपॉन r raised to the power 4, a upon r cube, a upon r square, a upon r, ar square, ar cube. Clear? These are my 9 terms in GP. These are my 9 terms in GP. Remember, if I am assuming these 9 in GP, which one is the first term? A upon r to the power 4. And what is the common ratio? That is r. अब given पे आते हैं. What is given to us?
गिवन, क्या गिवन है? फोर्थ एंड सिक्स टर्म, A4 A6 is given 9. Now from here what is the fourth term? 1 2 3 4. Fourth is A by R and what is sixth? AR. तो जब आप इस कंडीशन में रखोगे what will come? A square equal to 9. I have to take positive value, तो only A equal to 3, क्योंकि बोला गया था positive numbers. Is it? और क्या given है? Then given to us sum of fifth and seventh term. That means A5 plus A7. It is given 24. What is A5? 1, 2, 3, 4, 5. A5 is A and A7 AR square. We can calculate. So 1 plus R square is equal to 8. R square is equal to 7. R क्या होगा? जल्दबाजी मत दिखाओ, हो सकता है कि R square से ही काम हो जाए. Now, प्रॉब्लम में निकालना क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट A1 A9 प्लस A2 A4 A9 प्लस A5 प्लस A7. दिस वी हैव टू कैलकुलेट. क्या? आइए चेक करो रहा. दिस इज A1 एंड दिस इज A9. व्हाट इज देयर प्रोडक्ट? A square. That's the beauty of assuming terms in this manner. A2, A4, A9. A2, A upon R cube. A4, A by R and A9 last term. So A2, A4, A9. Their product is making A cube. Okay? A5 is A. A7, AR square. बन गया स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बन गया. सो नाउ A square plus A cube plus A times 1 plus R square. Just put the values. A हमारा 3 है. So 9 plus 27 plus 3 times R square 7 है. That's the answer. So 27 plus 9 36 and 3 plus 1 4. 4 और 3 12. सॉरी, यहां मैंने गड़बड़ कर दिया. R square 7 है. R square 7 है. R square 7 है. So 7 1 plus 1 8. 8 3 जा 24 और 27 plus 9 36. 36 plus 24. Our answer is 60. Getting it? Okay. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम. चलो नेक्स्ट. यस, अब ये थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम पूछा गया था. A1 B1 both are 1. an minus 1 plus n minus 1. bn minus 1 plus an minus 1. Capital S sum equal to summation sum. Capital T, this is also some summation. Then 2 raised to the power 7 times 2s minus t. Okay, I will say कि ओवरऑल सभी शिफ्ट के प्रोग्रेशन के प्रॉब्लम्स को अगर क्लब करें तो ये एक प्रॉब्लम ऐसा पूछा था जो रियली में बड़ा ही टेढ़ा प्रॉब्लम था. फाइन. इतना टेढ़ा प्रॉब्लम और किसी शिफ्ट में नहीं आया एज पर माय फीडबैक. चलो ट्राई करो आप लोग. मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि कैसे प्रोसीड करना था. वी हैव कैपिटल एस वो लिखा हुआ है समेशन ओवर bn upon 2 to the power n going from 1 to 10. So capital S is b1 upon 2, b2 upon 2 square, b3 upon 2 cube up to b10 upon 2 to the power 10. Right? अब जो मैं एक काम करने जा रहा हूं पहले उसको मैं कर लेता हूं, फिर आप सोचना मैंने क्यों किया. What I am doing, मैंने 2 से डिवाइड करके एंड आई एम राइटिंग शिफ्टिंग वन टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. आई एम राइटिंग शिफ्टिंग वन टर्म ऑन द राइट हैंड साइड. आई एम राइटिंग शिफ्टिंग वन टर्म. दोनों तरफ मैंने 2 से डिवाइड किया
and right hand side I am writing shifting one term. अब इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. सो s by 2 is equal to b1 by 2 plus b2 minus b1 upon 2 square, b3 minus b2 upon 2 cube, b10 minus b9 upon 2 to the power 10 minus b10 upon 2 raised to the power 11. बेनिफिट क्या हुआ आप इसको देखो. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशन? bn minus bn minus 1 is equal to an minus 1. फाइन. तो अब ये जो मैंने यूजिंग दैट कंडीशन b2 माइनस b1 किसके बराबर हो जाएगा? a1 के. b3 माइनस b2 किसके बराबर हो जाएगा? a2 के. b10 माइनस b9 किसके बराबर हो जाएगा? a9 के. नाउ इसके बाद की कैलकुलेशन स्टूडेंट यू कैन सी कि मैंने पूरा बोर्ड पे सॉल्व कर रखा है टू सेव द टाइम. इन द प्रीवियस स्लाइड हम लोग यहां तक आ गए थे, द वैल्यू ऑफ कैपिटल s by 2. नाउ यू कैन सी s by 2 निकला, उससे मैंने कैपिटल s निकाला. नाउ आई हैव कैपिटल s इन टर्म्स ऑफ a1 a2 a3. बट अगर आप प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट देखो, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है? 2s माइनस कैपिटल t. That means we have to get relation between capital S and T. और अगर आप T की सीरीज देखो तो जो T की सीरीज है that is without A1 and B1. So अभी ये जो कैपिटल S की सीरीज आई है इसमें जितने ये A के टर्म्स दिख रहे हैं इनको भी हमें एलिमिनेट करना है, तभी कैपिटल T अपीयर होगा. तो नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैंने कैपिटल S को 2 से डिवाइड करके और राइट हैंड में वन टर्म शिफ्ट करके लिखा हुआ है. सो आई एम गेटिंग a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 a9 माइनस a8. अब जो a का रिलेशन हमें गिवन है अकॉर्डिंग टू दैट कि कंसेक्यूटिव a का डिफरेंस n माइनस 1 है. सो यूजिंग दैट a2 माइनस a1 माइनस a1 1 आ गया, a3 माइनस a2 2 आ गया, a9 माइनस a8 8 आ गया. इस तरह से करते करते एट द लास्ट आई हैव कैपिटल 2s और मुझे एक सीरीज मिल गई 1 2 अपॉन 2 की पावर 1 3 अपॉन 2 स्क्वायर अप टू 8 अपॉन 2 टू द पावर 7. ये सीरीज कैपिटल T के इक्वल है. दैट्स द मेन पॉइंट कि नाउ आई हैव कैपिटल 2 टाइम्स S एंड कैपिटल T. इनके बीच में मुझे रिलेशन आ गया. और अभी भी लेकिन प्रॉब्लम में क्या बच रहा है? A9 एंड B10. तो A9 B10 इसके लिए स्टिल वी हैव टू डू हार्ड वर्क कि जो आपको A का रिलेशन गिवन था उससे आप पहले A2 निकालो, A3 निकालो, A4 निकालो, करते करते A9. सिमिलरली जो B का रिलेशन गिवन था यूजिंग दैट B2 B3 B4 करते करते एट द लास्ट B10. वंस वी हैव A9 B10 वी विल गेट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. तो मैंने प्रॉब्लम की स्टार्टिंग में ही बोला था कि प्रॉब्लम बहुत टेढ़ा है और रियली इस तरह के प्रॉब्लम्स को एग्जाम में अटेम्प्ट करने से बचना चाहिए. तो एज अ गुड स्टूडेंट यू मस्ट हैव दिस आइडिया इन द एग्जाम कि कौन सा प्रॉब्लम हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. माई एडवाइस कि इस तरह के प्रॉब्लम को एग्जाम में छोड़ देना चाहिए. फाइन, चलो आगे चले. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, देयर आर 2 GPs, one in terms of A, other in terms of B, having common ratios R1 R2. Both have first term 4, R1 less than R2. Now another series C की बात हो रही है और C का रिलेशन क्या है? CK equal to AK plus BK. C2 is given, C3 is given and we are looking for this term. प्रॉब्लम देखने में लग रहा है कि कुछ अजीब सा प्रॉब्लम है, क्या पूछ दिया गया, बट बन जाएगा. प्रॉब्लम में बहुत कुछ खास नहीं है, 3-4 तरह का डेटा गिवन है, 1 by 1 उसको डील करो, प्रॉब्लम बन जाएगा. तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से करो. चलो, सो आई एम डूइंग दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट आई एम यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन. C2 is given 5. So C2 5, that means A2 plus B2 5. A2 का मतलब A1 R1 and B2 का मतलब B1 R1. A1 B1 both are 4, so 4 times R1 plus R2. That's relation I am getting. Now other information we have,
C3. C3 is 13 by 4. C3 will be A3 plus B3. Now A3 A1 R1 square, B3 B1 R2 square, A1 B1 A1 B1 both are given 4. So R1 square plus R2 square 13 by 60. Clear? So there are two relations between R1 and R2. ये वाला 4 गलत है. There are two relations between R1 and R2. R1 plus R2 5 by 4. R1 square plus R2 square 13 by 16. What do you have to do? From these two relations, R1 and R2 we have found. R1 and R2 we have found. निकल आएगा, easy है. R1 less than R2 है, keeping it in mind. R1 की वैल्यू चाहिए और R2 की वैल्यू चाहिए. Once we have R1 and R2, then what we have to find? इस पे आते हैं. प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है? So it is summation. मैं CK की वैल्यू रख दे रहा हूं. CK is how much? AK plus BK. तो I have to find summation AK plus summation BK minus 12A6 minus 8 times B4. Is it? Now dear student, summation AK is what? Sum of infinite GP. क्योंकि A वाले टर्म GP में है, B वाले टर्म GP में है, तो इनफाइनाइट GP का सम. तो समेशन AK will be how much? A1 upon 1 minus R1. Summation BK will be B1 upon 1 minus R2. How much? A6 A1 times R1 raised to the power 5 and B4 B1 times R2 cube. अब ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए यहीं पे छोड़ दिया है. Now you can do it. If we have value of R1 and R2, then all these terms can be calculated. R1 R2 आ जाएगा. Putting it here, this whole expression can be calculated. In this way, we easily we have our answer. Fine. चले अगले टर्म पे, क्वेश्चन पे. फाइन. यस, इस तरह का प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आ गया तो बोलते हैं गिफ्टेड प्रॉब्लम है. ये क्लास में कई बार ये प्रॉब्लम किया जाता है. an is given and we are looking for a1 a2 up to a25. एक और एक ही तरीका होता है इस प्रॉब्लम का. एनी हाउ इस nth टर्म को अगर हम दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट कर लें, दो टर्म के डिफरेंस में स्प्लिट कर लें, फिर टर्म्स कटते चले आते हैं, वी गेट द आंसर. चलो हाउ, आइए चेक करो. कैन वी फैक्टराइज इट? an is minus 2 upon 4n square minus 16n plus 15. So now an is minus 2 upon, करके देखो इसके फैक्टर बन रहा है. 2n minus 3, 2n minus 5. Yes, बन रहा. So now an is 1 upon 2n minus 3 minus 1 upon 2n minus 5. Clear? Now just put the values. इसके अंदर आप वैल्यूज रखो. तो a1 कितना आया? 1 upon minus 1 minus 1 upon minus 3. a2 a2 की वैल्यू आएगी 1 upon 1 minus 1 upon minus 1. a3 1 upon 3 minus 1 upon 1. a4 1 upon 5 minus 1 upon 3. And in this way the last term a25 1 upon 47 minus 1 upon 45. क्या? इसको मुझे ऐड करना है, इसको मुझे ऐड करना है. नाउ चेक द पैटर्न. आर वी गेटिंग द टर्म्स कैंसल्ड? यस. सो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. एट द लास्ट बचेगा क्या? लास्ट का फर्स्ट टर्म 1/47 और स्टार्टिंग का सेकेंड टर्म दैट इज -1 upon -3. So finally it is how much?
1/47 plus 1/3 which will make our answer. Okay, एकदम इसी प्रॉब्लम था. नेक्स्ट, यस, ये प्रॉब्लम ये भी क्लास में कराया जाता है. कॉमन टर्म ऑफ द गिवन सीरीज. दो सीरीज आपको गिवन है एंड क्लियरली बोथ आर व्हाट, बोथ आर एपी. वी आर लुकिंग फॉर 8th टर्म ऑफ द कॉमन सीरीज फॉर्म. आई होप आप में से मैक्सिमम को ये प्रॉब्लम आता होगा. करो अपने आप. चलो, सो the logic we will be using here, series formed taking common terms between two AP will also be an AP having common difference equal to LCM of common difference of given APs. I have written here LCM D1 D2. Okay, so अगर मैं बोलूं common difference of required series, so that will be LCM. किसका LCM? पहली वाली का कॉमन डिफरेंस कितना 4, दूसरी वाली का कॉमन डिफरेंस कितना 5. इट विल कम 20. फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन सीरीज 11. So now 8th term will be a plus 8 minus 1 into d. How much a? 11. So 11 plus 7 into 20. What we are getting? 150. तो स्टूडेंट एकदम इजी प्रॉब्लम था, डायरेक्ट प्रॉब्लम था. बोलो, एकदम इजी प्रॉब्लम था, डायरेक्ट प्रॉब्लम था. और इससे भी बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है क्या, सेम पैटर्न पे एक दूसरी शिफ्ट में भी प्रॉब्लम पूछा गया था. तो अभी हम लोग ये कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 9. बीच के प्रॉब्लम्स को स्किप करके मैं डायरेक्टली जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन नंबर 16 वही प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट जो अभी हम लोग करके आ रहे हैं. अब की बार कितनी सीरीज है? देयर आर 3 सीरीज और हमें कॉमन, इसके कॉमन टर्म का सम चाहिए. तो वंस अगेन द सेम लॉजिक कि जो कॉमन सीरीज बनेगी वो भी एपी होगी और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इनके कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम. तो ये प्रॉब्लम आपको करना है. वीडियो पॉज करो, सब लोग इस प्रॉब्लम को बनाओ. डायरेक्टली हम लोग 9 से किस पे आ गए, 16 पे आ गए. बीच के प्रॉब्लम इसके बाद करेंगे, पहले इस प्रॉब्लम को करते हैं. सो कॉमन सीरीज will be AP with common difference is equal to LCM. किसका LCM? D1 D2 D3. so चेक करो, पहली वाली का कॉमन डिफरेंस कितना है 4, दूसरी वाली का 3 और फिर 5. तो इट विल कम 60. अब इस प्रॉब्लम में जो थोड़ा सा ट्विस्टिंग पार्ट था वो क्या था कि जो पहला कॉमन टर्म है वो इतना इजीली दिखाई नहीं दे रहा. प्रीवियस वाली में पहला कॉमन टर्म हमें डायरेक्टली दिख गया था. तो यहां पे पहले आपको सीरीज लिखनी पड़ेगी. फर्स्ट सीरीज क्या जा रही है 3 7 11 15. कितने कितने का गैप है 4 4 का. 19 23 27 31 35 39 43 47 एंड सो ऑन. सेकेंड वाली सीरीज 2 5 8 11 14 17
20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47. थर्ड वाली 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 and so on. Do we have first common term? Yes. 47, 47, 47. This is clearly our first common term. So now can we write terms of common series? आसानी से लिख सकते हो कि जो कॉमन सीरीज बनेगी उसके टर्म्स क्या क्या होंगे. फर्स्ट टर्म इज 47, देन नेक्स्ट टर्म 107, देन नेक्स्ट टर्म 167. विल वी गो बियॉन्ड इट? आंसर है नो, क्योंकि जो भी आपकी कॉमन सीरीज आएगी वो 197 के ऊपर तो जा ही नहीं सकती. आपको इन तीनों से कॉमन सीरीज बनानी है. थर्ड वाली का मैक्सिमम टर्म 197 है, तो जो भी आपकी कॉमन सीरीज बनेगी वो 197 के ऊपर तो जा नहीं सकती. और अभी हमारा क्या आ रहा, 47, 60 ऐड किया 107, 60 ऐड किया 167. अब फर्दर 60 ऐड करोगे तो अगला टर्म 200 के ऊपर चला जाएगा, वो हो नहीं सकता. तो कॉमन सीरीज विल हैव ओनली एंड ओनली दीज थ्री टर्म, एंड प्रॉब्लम इज आस्किंग अबाउट सम ऑफ दीज थ्री दैट वी कैन गेट. बोलो, एकदम इजी प्रॉब्लम था. यस, बन गया. चलो, तो अब इसके बाद हम लोगों को वापस जाना है कहां पे, प्रॉब्लम नंबर 10 पे, क्योंकि हम लोग 9 कर रहे थे और 9 से किस पे आ गए, 16 पे आ गए. नाउ वी विल गो बैक टू अवर प्रॉब्लम नंबर 10. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. क्या है प्रॉब्लम? 3 numbers a b c greater than 1, a cube b cube c cube, they are in AP. log b to the base a, log a to the base c, log c to the base b are in GP. If the sum of first 20 terms of AP whose first term and the term is this, then ABC equal to, fine. तो नटसेल में एक इजी प्रॉब्लम है, बट वी कैन से कि 2-3 चीजों को आपस में मिक्स कर दिया है, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू मेक डिफरेंट इक्वेशंस. सो जैसा मैं कहता हूं बार बार, वंस अगेन वीडियो पॉज करो, खुद से बनाओ, नहीं बनता है फिर मेरे सॉल्यूशन पे आना. फाइन. तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं. तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, आई एम राइटिंग दैट. बोला गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन एपी. सो 2b cube is equal to a cube plus c cube. This information is given to us. Then log b, log c, log a are in GP. Second information given to us, log a to the base c whole square is equal to log b to the base a into log c to the base b. Now using the property of log, which property? प्रीवियस एक प्रॉब्लम में, आज के ही लेक्चर में प्रीवियस एक प्रॉब्लम में प्रॉपर्टी का डिस्कशन हुआ था. क्या सिंगल लॉग इज रिटन रेशियो ऑफ 2 log. अ सिंगल लॉग इज रिटन रेशियो ऑफ 2 log. बेस ऑफ लॉग वी कैन टेक e. सो टर्म्स विल गेट कैंसल्ड. log b cancel, and we have log of a whole cube is equal to log of c whole cube. It has simple meaning a is equal to c. Now there must not be any confusion, since log is a 1-1 graph, increasing graph. So if log a cube is equal to log c cube, then a must be equal to c. इसके अलावा और कोई रिलेशन a और c का नहीं बनेगा. So we are getting a is equal to c. So using this information and this information, we have
b cube is equal to a cube, so b is also equal to a. So ultimately we are getting a equal to b equal to c, that means a equal to b equal to c. Fine. Now sum of first 20 terms of AP. So sum of AP is given 20. तो AP का फॉर्मूला n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 20. सॉरी मेरी जो सम हमें गिवन है, सम इज गिवन, sum of AP is given minus 444, 20 terms of AP. So 20 by 2, first term A plus 4B plus C by 3, 20 minus 1, 19, common difference A minus 8B plus C by 10. This is given minus 444. Fine. Now I am leaving this problem for you because now you can do it. In this relation, just put A is equal to B is equal to C. Get A, B, C. Okay. We have already got A is equal to B is equal to C. So just put here A is equal to B is equal to C. एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, उसकी वैल्यू निकल आएगी. Then A, B, C are equal. So we have all the values A, B, C. Put them here. Get the answer. Product A, B, C. Okay? एकदम इसी प्रॉब्लम था. Fine. आगे बढ़ते हैं. Next problem. Yes. Now मैक्सिमम स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम स्कूल बुक्स में, कोचिंग्स में किया हुआ होता है. आपको बोला गया है A1 A2 अप टू AN आर इन AP. A5 is equal to 2 times A7, A11 is equal to A18. So we are looking for root A10 plus root A11, root A11 plus root A12, root A17 plus root 18 के रेसिप्रोकल का सम. What is the unique point here? You can see these are consecutive terms of AP. These are consecutive terms of AP. तो जिसको जिसको प्रॉब्लम क्लिक हो रहा है खुद से सॉल्व करो. मैं इसको करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में. सो मैंने कहा लेट कॉमन डिफरेंस, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, let common difference of AP is D. Let common difference of AP is D. So now from my side I am multiplying and divide by D. Okay. Now I will write D as A11 minus A10. I can write A12 minus A11, A13 minus A12, A18 minus A17, now make the factors. Factorize the numerator. Numerator के factors करो, denominator से cancel करो. So what will come? 12 by D root A11 minus root A10 root A12 minus root A11 root A13 minus root A12 up to
root a18 minus root a17. Now check the terms. Which terms are getting cancelled? Okay, terms are getting cancelled. कैसे कैंसिलेशन हो रहा है? किसी भी पेयर का फर्स्ट टर्म नेक्स्ट पेयर के सेकंड से कैंसिल हो रहा है, किसी भी पेयर का फर्स्ट नेक्स्ट पेयर के सेकंड से कैंसिल हो रहा है. सो लास्ट में रूट a18 हमारे पास रह जाएगा. सो हियर आई हैव 12 by d root a18 minus root a10. So now the answer of problem will come if we have the value d of the common difference. a18, a10 and common difference, इन तीन चीजों पे हमारा आंसर डिपेंड कर रहा है. So now I am going to use additional data given. ये डेटा a11 मुझे गिवन है 18 और a5 मुझे गिवन है कितना 2 times a7. Now I am going to use this data. a11 is equal to 18. It means a1 plus 10d is equal to 18. a5 is equal to 2 times a7. It has meaning a1 plus 4d is equal to 2a1 plus a7 कितना होगा? a7 will be a1 plus 6d, तो 2 times 12d. तो from here a1 plus 8d is equal to 0. So now student, प्रॉब्लम मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूं. आई होप यहां पे अब आप बना सकते हो. a1 plus 8d is equal to 0 and a1 plus 10d equal to 0. Solving these two equation, you will get a1 as well as d. आ जाएगा ना? Solving these two, a1 will come as well as d will come. Once we have a1 and d, आपका a18 आ जाएगा, a10 आ जाएगा, d मिल गया, आंसर विल कम. पक्का? यस. सो द मेन कॉन्सेप्ट वाज हियर कि इफ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस एंड राइट द न्यूमरेटर एज डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स, then dividing numerator with denominator, we are getting only the difference of two terms, which we can find having the value of a1 and d. Okay, चलो बढ़े अगले प्रॉब्लम पे. चलो, now if the sum and product of 4 consecutive terms of a GP, 4 consecutive terms of GP की बात की जा रही है. अब याद करो, आज इसी लेक्चर में एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था 9 टर्म्स ऑफ जीपी का, जिसमें प्रोडक्ट की कंडीशन थी, तो मैंने स्पेशल वे में टर्म्स को सपोज किया था. सेम आई विल एडवाइज टू डू हियर सिंस द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन. तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन जीपी क्या लेते हैं आप सबको पता है? यस, पक्का पता है, सबको पता है. चलो करो, खुद से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो. मैंने कहा लेट टर्म्स इन जीपी, आई एम टेकिंग a upon r cube, a upon r, ar and ar cube. याद रखिएगा कॉमन रेशियो r स्क्वायर हुआ. इफ यू आर सपोजिंग टर्म्स इन दिस मैनर, then common ratio is r square. Common ratio is r square. What is given? Given product. Product is given and product is how much? Product is 1296. A raised to the power 4 is equal to 1296. तो how much है? A is equal to 6 आ गया. फिर क्या given है? Sum. Sum is given 126. That means a times 1 upon r cube plus 1 upon r plus r cube
126, ए हमारा 6 है, सो 1/r³ प्लस r³ प्लस 1/r प्लस r इज इक्वल टू 21. दैट्स ओके. ए मेरा 6 है, मैंने डिवाइड कर दिया तो 21 आ गया. नाउ दिस आई विल एक्सप्लोर. So I have r³ plus 1/r³ plus r plus 1/r is equal to 21. I am writing it r plus 1/r into r square plus 1/r square minus 1. I have applied the formula a³ plus b³. So a plus b, a square b square minus ab. Further, it is r plus 1/r into r plus 1/r whole square minus 3. Think about this step. कैसे आया? I want to convert the whole equation in terms of r plus 1/r. That I have done. Now, it is t into t square minus 3 plus t is equal to 21, where t is equal to r plus 1/r. Fine. Now it is t cube minus 2t minus 21 equal to 0. Check करो. t cube minus 3t plus t. And from hit and trial we can get the value of t from here, and that is t equal to 3. It's a cubic की हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले पहला फैक्टर आता है, फिर डिवीजन मेथड से अदर फैक्टर. आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट. आपको अगर करना तो आप करके देख लेना. केवल एक ही वैल्यू अपने काम की आ रही है, दैट इज t इक्वल टू 3. जो अदर फैक्टर बनेगा उसको सॉल्व करके रियल वैल्यू t की नहीं मिलेगी. तो आई हैव ओनली एंड ओनली t इक्वल टू 3. t किसको मैंने माना था? r प्लस 1/r को. तो t मिला यानी r प्लस 1/r मिला. What is the requirement of the problem? Sum of common ratio of all such GP. और कॉमन रेशियो क्या है? r स्क्वायर है. रिमेंबर दिस थिंग. आपको r की वैल्यूज का सम नहीं चाहिए, आपको r स्क्वायर की वैल्यूज का सम चाहिए. r स्क्वायर की वैल्यूज का सम चाहिए. तो अभी जो हम लोगों ने निकाला, दैट इज व्हाट? We have got t equal to 3. That means r plus 1/r is equal to 3. So from here r square minus 3r plus 1 equal to 0. r square minus 3r plus 1 equal to 0. r square minus 3r plus 1 equal to 0. I will say from here r1 plus r2 3 and r1 r2 1. Is it? What we have to find? We have to find आंसर की अगर मैं बात करूं तो हमें क्या निकालना? We have to find r1 square plus r2 square. So my dear student, r1 plus r2 मेरा 3 है, r1 r2 1 है, and what I have to find? r1 square plus r2 square. तो r1 plus r2 whole square minus 2 r1 r2. r1 plus r2 whole square 9 minus 2 r1 r2. That's the answer. बोलो, have you got it? So we have our answer 7. We have our answer 7. So प्रॉब्लम में जो मेन की पॉइंट था कि r प्लस 1/r की एक क्यूबिक बनी, उसे t ले लिया, r प्लस 1/r आ गया. नाउ वी हैव अ क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ r. वहां से r की दो वैल्यूज का सम ऑफ प्रोडक्ट आएगा. बट प्रॉब्लम में हमें निकालना क्या है? सम ऑफ कॉमन रेशियो.
supposing GP of such terms, what is the common ratio? R square. So our requirement is R1 square plus R2 square. So that answer is 7. मतलब कई स्टूडेंट इस प्रॉब्लम में यहां पे मिस्टेक कर गए, वो आंसर टिक करके चले आए 3. रिमेंबर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. गेटिंग इट? क्लियर? चलें अगले प्रॉब्लम पे. यस, आइए. नाउ अ मिसलेनियस सीक्वेंस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 5 स्क्वायर. आई होप इस तरह का प्रॉब्लम आप लोग यूजुअली करते ही करते हैं कि सारे प्लस वाले टर्म्स एक साथ कर लें, नेगेटिव वाले एक साथ कर लें. ओके, करो, ट्राई करो अपने से. सो आई एम राइटिंग 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 9 स्क्वायर. इन दिस वे 15 इंटू 29 स्क्वायर. ये मैंने एक साथ कर लिया. देन माइनस टाइम 2 इंटू 3 स्क्वायर 4 इंटू 7 स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म विल कम 6 इंटू 11 स्क्वायर. ओके, ये बात याद रखना. यहां पे टर्म्स का पैटर्न देखो क्या चल रहा है. 3 3 5 3 आया, फिर 7 आया, तो 3 7 में 4 का गैप है, तो 3 7 11. इन दिस वे आखिरी में जाके सीरीज कहां पे रुकेगी? नेगेटिव वाले टर्म्स की मैं बात करूं तो पॉजिटिव वाला 15 है, तो ये हमारा आखिरी में 14 आएगा. और अगर आप एक पैटर्न देखो, पैटर्न क्या चल रहा है? 2 4 जा माइनस 1 7 हुआ, 2 6 जा माइनस 1 11 हुआ. सो 2 इंटू 14 28 माइनस 1, लास्ट में ही आएगा 27 का स्क्वायर. सोचना कैसे आया? ओके, नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट. सो जस्ट राइट द जनरल टर्म. आई विल कॉल इट समेशन ओवर. देखो जो हमारा फर्स्ट टर्म है इसको हम लोग कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म को वी कैन राइट 1 इंटू 1 स्क्वायर. तो पहले क्या चल रहा है? फर्स्ट टर्म क्या चल रहा है? 1 3 5, तो जनरल टर्म क्या आ जाएगी? 2n माइनस 1. फिर क्या चल रहा है? 1 4 5, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 159 के लिए 159 एक एपी जा रहा है, उसका जनरल टर्म क्या बनेगा? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, तो 4n माइनस 3. यहां की हम लोग बात कर लेते हैं. यहां चाहो तो पहले 2 बाहर निकाल लो. तो नाउ इट इज 1 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 7 स्क्वायर 3 इंटू 11 स्क्वायर, लास्ट में 7 इंटू 27 स्क्वायर. ओके, हियर n गोइंग फ्रॉम 1 to 15, तो समेशन ओवर n गोइंग फ्रॉम 1 to 15 to n minus 1 4n minus 3 whole square minus 2 time. Here 1 2 3, so first term will be n and 3 7 तो 3 plus n minus 1 into 4n minus 1 whole square, and here n will go from 1 to 7. Fine? Yes students, tell me. मुझे लगता है मैंने कुछ मिस्टेक करी है. 1 3 5 1 3 5 एंड नो, ये जो 15 मैंने लिखा है 15 गलत लिखा. यस यस यस, दिस 15 विल नॉट बी हियर, हियर इट विल बी. आप देखो ना, इसमें वैल्यूज को पुट करो, इसमें वैल्यूज को पुट करो कि आपने को लास्ट में क्या चाहिए? 15. लास्ट में क्या चाहिए? 15. तो 15 कैसे आएगा? पुटिंग n इक्वल टू 8, और n को जब तुम 8 रखोगे तो 8 4 जा 32 माइनस 3 29. So here n is 8.
Okay, so n is going from 1 to 8 and here n is going from 1 to 7 and that is logical. टोटल टर्म्स कितने हैं? आप 1 से चालू करके 15 तक जा रहे हो, 15 टर्म्स हैं, तो 8 टर्म्स यहां कवर हो गए, 7 यहां कवर हो गए. नाउ स्टूडेंट आई एम लीविंग दिस प्रॉब्लम फॉर यू. अब ये सबको करना आता है. मल्टीप्लाई करोगे, सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन के फॉर्मूले बनेंगे. सिमिलरली हियर सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन स्क्वायर के फॉर्मूले बनेंगे. रिजल्ट्स आर नोन टू यू, बट बस एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन पुट n इक्वल टू 7 और इसको जब कैलकुलेट करोगे तो पुट n इक्वल टू 8. यू विल गेट योर आंसर. इज इट? चले आगे. चलो नेक्स्ट वन. यस, फॉर मी इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम. डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो. डिनोमिनेटर कैसा जा रहा है? डिनोमिनेटर में स्क्वायर भी आ रहा, पावर 4 भी आ रहा है. डिनोमिनेटर में पावर 4 भी है, पावर 2 भी है. ओके, आज की क्लास में हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था जिसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में nth टर्म था, उसको स्प्लिट किया था, फिर वैल्यूज रखी थी, टर्म्स कट गए थे. सेम लॉजिक विल वर्क हियर. सेम लॉजिक विल वर्क हियर कि एक सीरीज आपको गिवन है, इसका आप nth टर्म लिखो. अब उस nth टर्म को इफ यू कैन स्प्लिट एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, तो चांसेस होते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ n टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. सेम कॉन्सेप्ट मे बी हियर. लेट्स ट्राई. So for this problem, if I write the nth term, what will come? N upon 1 plus n square plus n to the power 4. That must be okay with everyone. Now, अब जिसको जिसको ये पता है कि डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज्ड एज 1 plus n square, 1 minus n plus n square, उनकी तो भाई निकल पड़ी. उनसे ये प्रॉब्लम एग्जाम में बन गया कि ये एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसके फैक्टर ये होते हैं. नाउ इफ वी राइट इट एज डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, यस इट कैन बी. व्हेन यू विल टेक एलसीएम तो ऊपर 2n आएगा, जबकि अपने पास क्या n है, बाहर एक 1/2 लगा दो. सो नाउ दिस इज tn, दिस इज अवर tn. बन गया. अब प्रॉब्लम बन गया. n की वैल्यू रखते जाओ, t1 t2 t3 t4 सब आते जाएंगे, सबको ऐड कर दो, आंसर. लेट्स चेक. लेट्स चेक. वैल्यूज रखो. n की वैल्यू 1 रखो. t1 इज हाउ मच? 1/2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/3. t2 1/2 टाइम्स n की वैल्यू 2 रखो. तो n की वैल्यू 2 रखने पे 1 minus 2 minus 1 और प्लस 4 3. सो 1/3. n की वैल्यू 2 रखने पे 4 2 1 7. n की वैल्यू 3 रखो. सो 1/2 टाइम्स 9 minus 3 6 plus 1 7. n की वैल्यू 3 रखो. 9 और 3 12 plus 1 13. ओके, नाउ यू कैन सी कि अब अगर हम इनको ऐड करें इफ वी ऐड ऑल दीज टर्म्स, तो यू कैन सी टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड. टर्म्स आर गेटिंग कैंसल. हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया टी सम ऑफ 10 टर्म्स. तो इसको हम लोग कहां तक ले जाएंगे? t10 तक ले जाएंगे. t10 विल बी 1/2 टाइम्स 10 रखो तो 100 minus 10 90 plus 1 1 upon 91. 1 upon 91 और 100 को यहां रखो तो 100 plus 10 110 plus 1 1 upon 111.
क्लियर? टर्म्स आर गेटिंग कैंसल्ड और कैंसिलेशन का पैटर्न क्या चल रहा है? किसी भी ब्रैकेट का सेकंड अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, सेकंड अगले के फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है। तो 1/91 कैंसिल हो गया होगा, लेकिन 1/111 रह गया होगा। तो आवर आंसर विल बी 1/2 टाइम्स 1/1 माइनस 1/111। दिस विल मेक अवर आंसर। स्टूडेंट गेटिंग इट? देखो बहुत आसान है। एलसीएम लोगे क्या बचेगा? 110/2 55, 55/111, 55/111। लेट्स चेक। ऑप्शन था यस 55/111। इज इट? सो स्टूडेंट इस तरह का प्रॉब्लम दो, यस बोनस प्रॉब्लम था। ओके, दिस वर्किंग इज क्लियर? नेक्स्ट, and the next problem is our last problem of this lecture, क्योंकि टोटल प्रॉब्लम थे कितने? 16, जिसमें से 16 नंबर 16 हम लोग ने पहले ही कर लिया है। सो दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? A1 is given 8, A2 A3 AN BN AP, मतलब ये A1 से लेकर AN तक पूरी AP है। फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 50 है, एंड द सम of last 4 terms is 170. Sum of last 4 terms is 170. Then the product of its two middle terms. Fine. देखिए प्रॉब्लम, yes it can be done अगर थोड़ा सा आप इसको चालाकी से करो तो। अब इसमें क्या हमें सपोजिशन ऑफ टर्म्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि सम की कंडीशन गिवन है। Yes, if you want you can go with that, but प्रॉब्लम आपको आएगी इसको हैंडल करने में कि लास्ट 4 टर्म्स का जो सम 170 बोला गया है, लास्ट 4 टर्म्स का सम 170, हाउ टू हैंडल दैट। चलो बनाओ आप लोग अपने अपने तरीके से, मैं भी करता हूं। सो फर्स्ट टर्म हमें 8 गिवन है और सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 50। तो मैंने कहा लेट फर्स्ट 4 टर्म्स, तो फर्स्ट 4 टर्म्स मेरे सिंपली क्या हो गए? A1 प्लस D, A1 प्लस 2D एंड A1 प्लस 3D। गिवन है सम 50, सो 4A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 50। A1 मेरा 8 है, तो 6D इज इक्वल टू 18। मुझे D आ गया, D कितना आ गया? D इज कमिंग 3। ओके, अब स्टूडेंट मेरी वर्किंग पे ध्यान देना। अब उसने बोला लास्ट 4 टर्म्स, फाइन, लास्ट 4 टर्म्स। देखो लास्ट 4 टर्म्स क्या होंगे? an माइनस D, an माइनस 2D, an माइनस 3D। बोलो मजा आई कि अगर मेरा लास्ट टर्म an है तो उसमें से d कम करते जाओ, लास्ट 4 टर्म्स आ गए। मुझे बोला गया है कि दे हैव सम 170, सो इट मींस 4 टाइम्स an माइनस 6D इज इक्वल टू 170। सो 4 टाइम्स an इज इक्वल टू D अपना 3 है, तो 6 3 18, सो ये बन गया कितना? 188। सो वी कैन गेट D फ्रॉम an, we can get an from here. How much an? An is 47. So last term मुझे मिल गया, last term is how much? 47. My last term is 47. लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ। प्रॉब्लम में उसने क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ मिडिल 2 टर्म्स। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा ये तो तभी पता लगेगा ना जब ये पता हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो उसके लिए इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लो। an 47 आया, विच मीन्स a1 प्लस n माइनस 1d 47. सो यू कैन गेट n फ्रॉम हियर। a1 तुम्हारा कितना है? a1 8 है, 47 माइनस 8, 39 और d तुम्हारा 3 है, तो 3 टाइम्स
n माइनस 3 टाइम्स n माइनस 1 39, तो n कितना आ गया, n आ गया 14, n आ गया 14. सो प्रॉब्लम के आंसर की बात करें तो प्रॉब्लम का आंसर क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टू टर्म्स. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 14. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 14 है, तो मिडिल टर्म कौन कौन सा होगा, 7 एंड 8. टोटल टर्म्स आपके 14 है, तो मिडिल टर्म आपके दो माने जाएंगे, कौन कौन से दो, 7 एंड 8. तो वी हैव टू फाइंड A7 A8, दैट वी कैन गेट. चलो ये भी निकाल देते हैं. A7 कितना होगा, A7 विल बी A प्लस 6D. A तुम्हारा 8 है और D तुम्हारा 3 है, तो 8 प्लस 6D, तो दैट इज 8 प्लस 18 26. A8 कितना होगा, A8 विल बी A प्लस 7D. 7D का मतलब 21 और 21 प्लस 8 29. This will make answer. 26 into 29, this will make our answer. So student, in this problem, this is the main point कि last 4 terms मैंने क्या किया, लास्ट टर्म एन लेके मैं उसमें से डी कम करता चला गया, तो आंसर इज 26 into 29. चेक कर लेते हैं प्रॉब्लम का आंसर क्या था. प्रॉब्लम हैज आंसर 754. So 26 into 29, this will make our answer. Getting it? So my dear students, in this lecture of progression, in which I have completed, I have clubbed all the problems from JEE Main 2023 January session. Too much useful for all those students who are right now in class 11th going to class 12th, as well as those students who are going to attempt next session of JEE Main. Okay?